कैसे दो दिग्गजों ने बना दिया कूटनीति के क्रांतिवीर उनको। कैसे इंडिया इजराइल ने अब से थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी, और क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाएंगे। What a great honor. Great day, historic day. Welcome, my friend. It's wonderful. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. To rejuvenate the bonds of our friendship. It's a marriage, really, made in heaven. I again thank you for your warm welcome. We're making history together. 24 घंटे से दुनिया को जिसका था इंतजार, My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. 24 घंटे से जिन पर पूरी दुनिया की थी नजर, The all respect that I have and the pleasure that I have that you are one of the greatest leaders of the democracies in the world in this time. रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई। वो दो हस्तियां 24 घंटे बाद लेकर आई दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। Welcome, friend. It's a marriage, really, made in heaven, but we're implementing it here on earth. The cooperation can help the cause of global peace and stability. ये कूटनीति के दो क्रांतिवीरों का मास्टर स्ट्रोक है। We also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. We must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. ये दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक गाथा है। जिसमें इंसानियत को शह और आतंकवाद को मिलेगी मौत। तो देर आए दुरुस्त आए। भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल जाते जाते भले ही 70 साल लग गए, लेकिन ये पहले दौर का नतीजा शानदार रहा। भारत और इजराइल के बीच 7 अहम करार हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का साझा ऐलान जंग। 24 घंटे में कैसे एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, ये देखिए। 5 जुलाई 2017 शाम के 5:25
India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. How our cooperation can help the cause of global peace and stability, and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism. 4 जुलाई 2017 शाम के 6:30। Oh, what a great honor. Great day, historic day. Zaid honor. Welcome, my friend. It's wonderful to see. Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. 24 घंटे में नए युग की शुरुआत। ये ऐतिहासिक नजारा इजराइल की धरती पर कूटनीति के 2 क्रांतिवीरों के महामिलन का है। यहां बात सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की नहीं है, ये दास्तां है दिल से दिल मिलने की। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की। We are being challenged. We are being challenged by the forces of terror, the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. It is India's hope that peace, dialogue and restraint will prevail. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साझा बयान सही मायने में नए युग का ऐलान है। एक ऐसा युग जो इंडिया और इजराइल का साझा युग कहलाएगा। एक ऐसा युग जिसमें इंडिया और इजराइल की दोस्ती चरम पर होगी। दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख के सबसे सच्चे साथी बनेंगे और आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे। India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests. Almost 30 years ago, I went on a date in Tel Aviv in an Indian restaurant and produced 2 fine children. India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world. 70 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा के पहले 24 घंटों में दोनों देशों के बीच 7 करार हुए। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ। जल संरक्षण पर दोनों देशों के बीच करार हुआ। 3 साल का साझा कृषि विकास समझौता हुआ। भारत इजराइल स्पेस एजेंसी के बीच समझौता। गंगा की सफाई को लेकर दोनों देशों के बीच करार और छोटे सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के विकास पर समझौता हुआ। Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities
and draws on enduring bonds between our peoples. Friends, Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. कृषि, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में इजराइल दुनिया के सबसे अव्वल देशों में है। इजराइल के साथ 7 करार न्यू इंडिया के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। स्पेस में दोनों देश किस प्रकार साथ मिलकर काम करें, इसको लेकर है। नेशनल सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस और ये इन विषयों में पहले से हमारे संबंध अच्छे रहे और मजबूत करने की बहुत जरूरत है। तो जब दो बड़े नेताओं के बीच में इस प्रकार के समिट मीटिंग होते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। समझौते और साझा बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इंडिया आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। दुनिया को इजराइल और इंडिया का ये साझा और दमदार संदेश है कि इंडिया अब किसी के दबाव में इजराइल से दूरी बनाकर रखने वाला नहीं है, बल्कि हर मुसीबत पर साथ देने वाले इजराइल के लिए बाहें फैलाकर तैयार रहेगा। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूं ही नहीं कहा कि भारत और इजराइल की साझेदारी स्वर्ग में बनी है। नेतन्याहू ने कहा कि स्वर्ग में बनी इस साझेदारी को जमीन पर लागू करेंगे। इंडिया इजराइल की दोस्ती 24 घंटे में कैसे परवान चढ़ गई, कैसे 24 घंटे में इंडिया इजराइल ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर दी, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे की मुलाकात, नए युग की शुरुआत। 24 घंटों में 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे से गले मिले। ज्यादातर मौकों पर नेतन्याहू मोदी के साथ रहे। 4 जुलाई 2017 शाम 6:30 बजे तेल अवीव के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे। विमान के सामने दूर तक लाल कालीन बिछाया गया था। प्लेन से उतरते ही मोदी नेतन्याहू ने हाथ मिलाया और फिर गले मिले। इसके बाद नेतन्याहू मोदी को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर सबसे पहले भारत और फिर इजराइल के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। मोदी नेतन्याहू एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले सैनिकों की टीम में महिलाएं भी शामिल थीं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगे सोफे पर बैठने के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाए। इसके बाद जब पीएम नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया तो भारत और अपने दोस्त मोदी की तारीफें करते चले गए। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का बड़ा नेता बताया और इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद जब पीएम मोदी की बारी आई तो उससे पहले दोनों नेताओं ने एक बार फिर हाथ मिलाया। मोदी ने कहा कि इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात है और ये दौरा दोनों देशों की मजबूती का प्रतीक है। 4 जुलाई 2017 शाम 7:50 एयरपोर्ट पर महज 10 मिनट की मुलाकात के दौरान मोदी और नेतन्याहू 3 बार गले मिले और हाथ तो कई बार मिलाए। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के बाद पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ तेल अवीव में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज गए, जहां उन्होंने फूलों का बाग देखा। इजराइल सरकार ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए गुलदाउदी के फूल को मोदी नाम दे दिया। इसके बाद पीएम मोदी
याद वाशिम स्मारक गए, जहां उन्होंने यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार हॉलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मेमोरियल में पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। 4 जुलाई 2017 रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पहुंचे। इजराइल के पीएम ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था। 4 जुलाई 2017 पीएम मोदी और इजराइल के पीएम का प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ। 5 जुलाई 2017 दोपहर 1 बजे भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे पीएम मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन से मुलाकात की। रिवलिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के समर्थन का वादा दोहराया तो पीएम मोदी ने इंडिया इजराइल की दोस्ती का आई फॉर्मूला दिया। 5 जुलाई 2017 शाम 5:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में भारत इजराइल के बीच 7 करार हुए और उसके बाद जारी हुआ साझा बयान। राहुल सिन्हा, तेल अवीव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की झप्पी वाली कूटनीति ने इंडिया इजराइल के रिश्ते को नया आयाम दिया है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतर रहे थे। पीएम मोदी ने सफेद रंग का बंद गले का सूट पहन रखा था, जिसकी जेब में नीले रंग का पॉकेट स्क्वायर था। पीएम मोदी ने सबके जहन में एक सवाल छोड़ दिया। सफेद सूट और नीले पॉकेट स्क्वायर के कलर कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन अब इस कलर कॉम्बिनेशन का राज खुल गया है। सफेद सूट और नीले पॉकेट स्क्वायर का राज इन 2 तस्वीरों में समझिए। यही दोनों कलर कॉम्बिनेशन इजराइल के नेशनल फ्लैग में भी हैं। आज राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने इजराइल को सच्चा दोस्त बताया। दरअसल पीएम मोदी ने सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन पहनकर भारत इजराइल के रिश्तों की मधुरता को पेश किया है। भारत इजराइल की भरोसेमंद दोस्ती का सबूत दिया है। इजराइल ने भी सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन और आतंकवाद पर हमेशा साथ देने का वादा किया और अपनी दोस्ती का सबूत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन से मुलाकात की। इस मौके पर 2016 में उनके भारत दौरे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ इंडिया का आई और इजराइल का आई जोड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत की भी तारीफ की। पीएम मोदी के लिए पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5 बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। ये सबूत है नरेंद्र नेतन्याहू की दोस्ती का। तेल अवीव से राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी आज इजराइल में बेबी मोशे से मिले। 11 साल के मोशे का भारत से गहरा नाता है। मोशे के मां बाप इजराइल के थे और मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के दौरान उनकी मौत हुई। उस हमले के वक्त इस बच्चे की उम्र महज 2 साल की थी। मिस्टर नईम मोदी, नमस्ते तुझे प्रधान मंत्री हिंदुस्तान, आपका स्वागत है हमारे देश में। Welcome to Israel, our holy land, to holy city of Jerusalem. My name is Moshe Holtzberg, the son of Rabbi Gabi and Rivki Holtzberg. मोशे और मोदी की मुलाकात पीएम मोदी के इजराइल दौरे की सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि मोशे वो बच्चा है जिसने 26/11 के मुंबई हमले में अपने माता पिता को खो दिया था। उस वक्त मोशे महज 2 साल का था, आज 11 साल का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मोशे अब आपके सामने वो छोटा सा बच्चा मोशे, जिसकी तस्वीर आपने अब से 8 साल पहले देखी थी और अब में बहुत अंतर आ चुका है मोशे का। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला मोशे की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द कैसे बन गया, ये समझने के लिए हमें 9 साल पीछे लौटना होगा, जब मुंबई हमला हुआ था। बेबी मोशे और उसके इजरायली माता पिता मुंबई के नरिमन हाउस में रहते थे।
26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। इस हमले में बेबी मोशे के माता-पिता भी मारे गए थे। मोशे को उसकी आया सैंड्रा सैमुअल ने बचा लिया। उस वक्त मोशे महज 2 साल का था। It's like not 1, 2. It's like hundreds of gunshots, 10-20 grenades bombed in the Kabul. So, what? Even I'm a mother of 2 children. So I just pick the baby and I run. इस हमले में मोशे ने अपने माँ बाप को खो दिया। मोशे अब बड़ा हो गया है। 9 साल पहले उसकी जिंदगी में क्या हुआ उसे याद नहीं। वो तो पूछते भी नहीं है, उसका माँ बाप को नहीं पूछता तो उसको घटना का क्या पूछेगा। वो बहुत छोटे थे, समझना चाहिए कि बहुत छोटे थे। 2 साल बच्चा क्या याद रखेंगे, नहीं उसको कुछ याद नहीं है। मोशे के माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसके दादा दादी बेबी मोशे को इजराइल ले गए। साथ में गई सैंड्रा सैमुअल। मोशे बस सैंड्रा को ही पहचानता था। सैंड्रा ने उसका अपने खुद के बच्चे की तरह ख्याल रखा। मोशे को इजराइल की नागरिकता प्रदान की गई। वो अपने दादा दादी के साथ रहने लगा। सैंड्रा को भी 2 साल बाद इजराइल की नागरिकता दे दी गई। उन्हें वहां उनकी बहादुरी के लिए बहुत सम्मान मिला। बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि उसको याद है कि अभी भी एक बच्चे हैं ये देश में, किधर मेरा देश से। इस बच्चे का हिंदुस्तान से दर्द का रिश्ता है और पीएम मोदी ने उसी दर्द को बांटा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, नमस्ते। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इजराइल। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे नहीं कहला रही है कूटनीति के क्रांतिवीर। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।